ہے وہ مکرم عبدالوہاب طیب صاحب جو جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کے مبلغ سلسلہ ہیں کریں گے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی۔ مکرم عبدالوہاب طیب صاحب ربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ سے محبت اور عشق کی داستان حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عشق الہی میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ باوجود بہت بڑی جماعتی ذمہ داری کے دن اور رات آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نصف رات گزرنے پر آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور صبح تک عبادت کرتے رہتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور آپ کے دیکھنے والوں کو آپ کی حالت پر رحم آتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایسے ہی موقع پر کہا، یا رسول اللہ، آپ تو خدا تعالیٰ کے پہلے ہی مقرب ہیں، آپ اپنے نفس کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، جب یہ بات سچی ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا مقرب ہوں اور خدا تعالیٰ نے اپنا فضل کر کے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، تو کیا میرا یہ فرض نہیں کہ جتنا ہو سکے میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں؟ حضور فرماتے ہیں، کیا اخلاص سے بھرا ہوا اور کیسی شکر گزاری ظاہر کرنے والا یہ جواب ہے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کے جذبات کو کھول کر پیش کر دیتا ہے۔ خدا کی یاد اور اس کے ذکر کی یہ تڑپ اور کس کے دل میں ہے؟ کیا کوئی اور اس کا نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ کیا کسی اور قوم کا بزرگ آپ کے اس اخلاص کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کی محبت کی تو یہ حالت تھی کہ جب ایک وقفے کے بعد بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر بارش کا قطرہ لے لیتے اور فرماتے، یہ میرے رب کی تازہ نعمت ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے احسانات کا مطالعہ جس غور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور کسی انسان نے نہیں کیا، اسی لیے جس محبت سے آپ اپنے پیارے کا نام لیتے تھے اور کسی انسان نے نہیں لیا، ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے محبین اور ذاکرین میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ آپ جیسا ذاکر اور محب اور کوئی نہیں مل سکتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی عبادتوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جو نہایت ہی نیک اور پاکیزہ خصائل کے آدمی تھے،
आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर कैसा अच्छा आदमी होता अगर तहज्जुद भी बाकायदा पढ़ता। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह खबर पहुंची तो आपने उस दिन से तहज्जुद की नमाज बाकायदा शुरू कर दी। फिर एक और सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ये रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ उनका हाथ पकड़कर फरमाया, ए मुआज़, मैं यकीनन तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि हर नमाज के बाद ये जिक्र करना और ये हरगिज़ न छोड़ना कि तुम ये कहो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा अपने ज़िक्र के लिए और अपने शुक्र के लिए और अपनी इबादत की खूबसूरती के लिए। ये मोहब्बत का बेहतरीन तोहफ़ा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को अता फरमाया और उनसे मोहब्बत के इजहार के बाद दरअसल उनको उस मोहब्बत को खुदा की तरफ मोड़ दिया और किस तरह खुदा की मोहब्बत हासिल करने का तरीक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की तरबियत की बुनियाद भी मोहब्बत इलाही पर ही रखी ताकि वो अल्लाह की मोहब्बत में परवान चढ़ें और ये मोहब्बत उनके दिल में ऐसी घर कर जाए कि वो गैरुल्लाह से आज़ाद हो जाएं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को गोद में लेकर ये दुआ करते थे कि अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला से कुछ ऐसी मोहब्बत और प्यार था कि कोई मामला हो उसमें खुदा ताला का जिक्र ज़रूर करते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, गर्ज के हर मौके पर खुदा का नाम ज़रूर लेते। इसकी एक मिसाल पेश करते हुए हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि दुनिया में खुशनुदी और तवज्जो दिलाने के लिए तालियां पीटी जाती हैं। अरबों में भी यही रवाज था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला की याद और उसका जिक्र इतना पसंद था कि इस गर्ज के लिए भी जिक्र इलाही ही इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। चुनाचे एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम में मशगूल थे कि नमाज का वक्त आ गया। आपने फरमाया, अबू बकर नमाज पढ़ा दें। फिर काम से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद फ़ौरन मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। जब नमाज पढ़ाने वालों को ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले आए हैं तो उन्होंने बेताब होकर तालियां बजानी शुरू कर दी, जिससे एक तरफ तो ये बतलाना मकसूद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उनके दिल में बेइंतहा जोश पैदा हो गया है और वो खुश हो गए हैं कि अब अबू बकर की नमाज और इमामत ख़त्म हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हट गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमाम की जगह छोड़ दी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, जब मैंने तुमको नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था तो तुम मेरे आने पर पीछे क्यों हट गए? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में अबू कहाफा का बेटा क्या हैसियत रखता था कि नमाज पढ़ाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि तालियां पीटने से तुम्हारी क्या गर्ज थी? खुदा के जिक्र के वक़्त तालियों का बजाना
तो गैर मुनासिब मालूम होता है। जब नमाज के वक्त कोई ऐसी बात हो कि उसकी तरफ तवज्जो दिलानी ज़रूरी हो तो बजाय तालियां बजाने के खुदा का नाम बुलंद आवाज से लिया करो, और आपने सिखाया कि सुभान अल्लाह कहा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो दूसरों को इस वाक़े की तरफ खुद ब खुद तवज्जो हो जाएगी। बस इस कलमे के मुकाबले में तालियां बजाना और सीटियां मारना बिल्कुल लग़व और बेफ़ायदा है, और इन लग़व हरकात के मुकाबले पर ऐसा पाक कलमा रख देना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पाक तबीयत का काम था, वरना हजारों साल से इस लग़व हरकत को रोकने की किसी और के दिल में तहरीक पैदा नहीं हुई। हाँ, सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जो इस नुक्ते तक पहुँचे, और आपने ऐसे मौके पर खुदा ताला का नाम लेने की तालीम देकर साबित कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक मौके पर खुदा ताला का जिक्र करना पसंद फरमाते, और उसी का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ग़ज़ा था। जब मजलिस में बैठते तो इस्तिग़फ़ार करते रहते, और यूं भी अक्सर इस्तिग़फ़ार करते ताकि आपकी उम्मत और आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाले खुदा ताला के गज़ब से बचे रहें और उसकी बख्शिश के मुस्तहिक हो जाएं। हर वक्त खुदा ताला के सामने हाजिर होने की याद को ताज़ा रखते। चुनाचे जब आप सोते तो ये कहते हुए सोते, अल्लाहुम्मा बेइस्मिका अमूतु वाहिया, ए खुदा तेरा ही नाम लेते हुए मैं मरूं और तेरा ही नाम लेते हुए मैं उठूं। और जब आप सुबह उठते तो कहते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह ही के लिए सब तारीफ़ें हैं जिसने मरने के बाद हमको ज़िंदा किया और फिर हम अपने रब के सामने जाने वाले हैं। खुदा का कलाम आप सुनते तो बेइख्तियार होकर आपकी आंखों में आंसू आ जाते, खुसूसन वो आयात जिनमें आपको अपनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। चनाचे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ की कुछ आयात पढ़कर मुझे सुनाओ। मैंने उसके जवाब में कहा कि या रसूलुल्लाह, कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ है, मैं आपको क्या सुनाऊं? आपने फरमाया कि मैं पसंद करता हूं कि दूसरे लोगों से भी कुरान पढ़वा कर सुनूं। वो कहते हैं कि जब पढ़ते पढ़ते मैं इस आयत पर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जि'ना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जि'ना बिका अला हाउलाई शहीदा, यानी उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर कौम में से उसके नबी को उसकी कौम के सामने खड़ा करके उसका हिसाब लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस करो बस करो। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत इलाही के एक और पहलू का जिक्र हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताल्लुकात अल्लाह ताला से थे और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मामला साफ रखा हुआ था, इस पर यह बात भी रोशनी डालती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम कामों में पहले ये देख लेते कि खुदा ताला का क्या हुक्म है, और जब तक खुदा ताला की तरफ से कोई हुक्म ना होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के करने पर दलेरी न करते। चनाचे मक्का से बावजूद हज़ारों किस्म की तकालीफ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत नहीं की। हाँ, सहाबा को हुक्म दे दिया कि अगर वो चाहें तो हिजरत कर जाएं, और इस पर बहुत से सहाबा हबशा को और कुछ मदीना को हिजरत कर गए। जुल्म और तकलीफ़ के वक्त जब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو ہجرت کر کے چلے جانے کی ہدایت دی اور خود اکیلے مکہ میں رہ گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے ابھی ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ کیا پاک انسان تھا، دکھ پر دکھ، تکالیف پر تکالیف پہنچ رہی ہیں، سب ساتھیوں کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ، جس جگہ امن ہو چلے جاؤ، لیکن خود اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور باوجود مخالفت کے اس بات کا منتظر ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو میں اس پر کاربند ہوں۔ کیا کسی انسان میں یہ ہمت ہے یا کوئی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف ایسا متوجہ ہو کہ ایسے خطرناک مصائب کے اوقات میں بھی دشمنوں کی مخالفت کو برداشت کرتا جائے اور جب تک خدا کا حکم نہ ہو اپنی جگہ نہ چھوڑے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ! حضرت محمد مصطفیٰ! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! نعرہ تکبیر! پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، ایسا عشق تھا کہ کفار مکہ اپنی تمام دشمنیوں کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عاشق محمد ربہ، کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ یعنی عاشق کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ یہ تکلیفیں برداشت کر سکے، عاشق کے سوا کسی کو یہ توفیق نصیب ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ خدا کی راہ میں وہ دکھ برداشت کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں برداشت کیے۔ عشق الہی کی یہی سرشاری تھی کہ جب کفار مکہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ اگر مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں، اگر آپ حکومت کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو سارے عرب میں سے خوبصورت عورت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سب چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب میں فرمایا کہ اگر سورج کو میرے دائیں رکھ دو اور چاند کو میرے بائیں اور کہو کہ خدائے واحد کی توحید کی اشاعت کرنے سے رک جاؤ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیسا ایمان، کیسا یقین، کیسا پاک تعلق تھا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ خدا تعالیٰ سے محبت اور توحید الہی کے ساتھ جو آپ کو لگاؤ تھا اس کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اسی طرح احد کے موقع پر جو مسلمان زخمی اور پراگندہ حالت میں ایک پہاڑی کے نیچے کھڑے تھے اور دشمن اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ اس خوشی میں نعرے لگا رہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کی طاقت توڑ دی ہے، اس وقت ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا کہ اولو حبل، یعنی حبل کی شان بلند ہو، حبل بت کی شان بلند ہو۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جو دشمن کی نظروں سے چھپے کھڑے تھے اور اس چھپنے میں ہی ان کی خیر تھی، حکم دیا کہ جواب دو، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہی ہے جو سب سے بلند اور سب سے زیادہ جلال والا ہے، اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے جلال والا ہے۔ غرض ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے جلال کا اظہار کیا ہے اور جس طرح آپ نے عشق و محبت کا ثبوت دیا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی اور نبی میں دکھائی نہیں دیتی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار محبت کے متعلق کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی محبت اور پیار اور جلال کے احساس سے لرزاں ہو جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں
کہ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा देते हुए ये आयत पढ़ी, वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे, वो पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो वो शिरक करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी तो फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बड़ी ताकतों वाला और नुकसान की तलाफ़ी करने वाला हूँ, मेरे लिए ही बड़ाई है, मैं एक बुलंद शान वाला बादशाह हूँ, तमाम बादशाहों में सबसे बढ़कर मेरे लिए ही बड़ाई है। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी ज़ात की मजद और बुजुर्गी बयान करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के मजद और बुजुर्गी के इस बयान को इस तरह दोहराने लगे और ऐसे वजद में आए कि रावी बयान करता है कि सारा मिंबर लर्जने लगा, और इस कुव्वत और शान के साथ और इस गहरे जज्बा इश्क के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हम्द बयान करने लगे और ये फिक्रे बार बार दोहराने लगे कि हमें डर था कि मिंबर इस लर्जिश से कहीं टूट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ न ले गिरे। ये वो कैफियत थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बनाए नहीं बना करती। ये एक बेइख्तियार कैफियत है, और इस पहलू से अगर हम अपनी मोहब्बत को जांचना चाहते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला के ज़िक्र पर हमारे दिल पर एक ज़लज़ला तारी होता है कि नहीं। क्या हमारे बदन और रुए रुए में खुदा का प्यार दौड़ने लगता है कि नहीं जब उसका नाम लिया जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी उम्र खुदा ताला को याद करने में गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुदा ताला को सारी उम्र उठते बैठते चलते फिरते खलवत और जलवत गर्जे के हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ही खुदा याद था, और उसी का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर जारी था। जब वफ़ात का वक्त आया तब भी बजाय किसी और दुनियावी गर्ज या मतलब की तरफ मुतवज्जे होने के खुदा ही की याद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में थी, और आपकी ज़ुबान पर अगर कोई फ़िक्रा जारी हुआ तो यही कि अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक़िल आला, ऐ मेरे अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला में जगह दे, ऐ मेरे अल्लाह मुझे रफ़ीक़ आला में जगह दे। यानी आप ये दुआ कर रहे थे कि मैं अपने अल्लाह यानी जो सबसे आला है उसी दोस्त की तरफ जाना चाहता हूँ। बस अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा को पाने का एक ही यकीनी तरीक़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। यानी खुदा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होता है और फरमाता है कि तू बनीनो इंसान से कह दे कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करने के दावेदार हो तो फिर मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, मैं हमेशा ताज्जुब की निगाह से देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद है, हज़ार हज़ार दरूद और सलाम उस पर, ये किस आली मर्तबे का नबी है। वो तौहीद जो दुनिया से गुम हो चुकी थी, वही एक पहलवान है जो दोबारा उसको दुनिया में लाया। उसने खुदा से इंतहाई दर्जे पर मोहब्बत की, उसने खुदा से इंतहाई दर्जे पर मोहब्बत की और इंतहाई दर्जे पर बनी नौ की हमदर्दी में उसकी जान गुदाज हुई। इसलिए खुदा ने जो उसके दिल के राज का वाकिफ था उसको तमाम अंबिया और तमाम अव्वलीन व आखरीन पर
फजीलत बख्शी और उसकी मुरादें उसकी ज़िंदगी में उसको दी। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा ताला से ये इंतहाई दर्जे की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मखलूक से भी मोहब्बत की। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ने एक दफ़ा इस मज़मून को इस तरह से बयान फरमाया कि सब मोहब्बत करने वालों में से बढ़कर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा से मोहब्बत थी, मगर उस मोहब्बत ने फिर आपके दिल को वापस लुटाया है अपने रंग देकर, इसलिए कि खुदा भी तो बनीनो इंसान से मोहब्बत करता है। इसकी एक मिसाल देते हुए आपने समझाया कि मसलन अगर एक शख्स बदसूरत हो तो वो जहाँ भी जाएगा, लोग अगर बाअखलाक हैं तो हल्के तरीके पर नज़रें एक तरफ फेरेंगे, और अगर बद अखलाक हैं, उनके अखलाक अच्छे नहीं, तो पीठ फेर कर बैठ जाएंगे और उसको और भी तकलीफ़ पहुँचाएंगे। लेकिन देखें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज़ था। आपने जब खुदा से मोहब्बत की थी तो क्या बनकर उभरे हैं, क्या बनकर लौटे हैं आसमान से। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि आपने देखा कि एक गरीब सहाबी जो इत्फाकी तौर पर बदसूरत भी थे, सख्त गर्मी के मौसम में बोझ उठा रहे हैं और उनका तमाम जिस्म पसीने से शराबूर और कपड़े गंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उनके पीछे चले गए और जिस तरह बच्चे खेल में चोरी छुपे दूसरे की आंखों पर हाथ रख कर कहते हैं और फिर चाहते हैं कि वो अंदाजे से बताएं कि किसने उसकी आंखों पर हाथ रखा है, इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से उस सहाबी की आंखों पर हाथ रख दिए। उसने आपके मुलायम हाथों को टटोल कर समझ लिया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मोहब्बत के जोश में उसने अपने पसीने से भरा हुआ जिस्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के साथ मलना शुरू कर दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे और आखिर आपने फरमाया, मेरे पास एक गुलाम है, क्या इसका कोई ख़रीदार है। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा ख़रीदार दुनिया में कौन हो सकता है। आपने फरमाया, ऐसा मत कहो, खुदा के हुजूर तुम्हारी बड़ी कीमत है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि अल खल्क़ु यालुल्लाह, यानी तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की अयाल हैं और हर एक इंसान से बग़ैर किसी तफरीक के हमदर्दी और हुस्न सलूक करने से खुदा ताला की मोहब्बत अता होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि खुदा की मोहब्बत से मुराद ये है कि फिर हर किस्म की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। खुदा की मोहब्बत से मुराद ये है कि बाकी सब मोहब्बतें खुदा की मोहब्बत के ताबे हो जाती हैं, और जब इंसान खुदा से मोहब्बत करता है तो ये इसका एक लाजमा है कि वो बनीनो इंसान से भी मोहब्बत करता है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल का एक तरीक ये भी सिखलाया। आप फरमाते हैं, हबीबुल्लाह इला इबादिही युहबिबकुमुल्लाह, यानी लोगों के अंदर तुम ऐसी बातें किया करो जिनसे खुदा की मोहब्बत पैदा हो। इसका नतीजा ये होगा कि खुदा भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम अपने बच्चों को और बड़ों को, दोस्तों और रिश्तेदारों को मोहब्बत इलाही की ज़रूरत और उसके हसूल की अहमियत बताओ और मोहब्बत करने वाले अफ़ाल का जिक्र बार बार अपनी मजालिस में मोहब्बत और प्यार से करते रहो, तो तुम्हारी मोहब्बत भी बढ़ेगी और उनकी भी। फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसके प्यार को हासिल करने का एक बहुत अहम और बुनियादी ज़रिया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है वो दुआ है। हदीसों से साबित है
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बका व हुब्बा मन अहब्बका व हुब्बा मा युक़र्रिबुनी इलैका वजल हुब्बका अहब्बा इलैया मिनल माइल बारिद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ी हुब्बका, यानी ऐ मेरे खुदा मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा, व हुब्बा मन अहब्बका, और ऐ खुदा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं मेरे दिल में उनकी मोहब्बत डाल दे, व हुब्बा मा युक़र्रिबुनी इलैका, और उन कामों की और उन आला दर्जे के अखलाक की और उन कुर्बानियों की और उन नेकियों की भी मेरे दिल में मोहब्बत डाल दे जिनसे तेरी मोहब्बत पैदा होती है। वजल हुब्बा का अहब्बा इलैया मिनल माइल बारिद, और ऐ मेरे रब अपनी मोहब्बत मेरे दिल में उससे भी ज़्यादा पैदा कर दे जितनी शदीद गर्मी के मौसम में इंसान को ठंडे पानी की मोहब्बत होती है। हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये वो दुआ है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे और जिसका दवाम इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा कर देता है, और इसी दुआ के इल्तिज़ाम से कुर्बे इलाही की दौलत नसीब होती है। बस मोहब्बत की राहें सीखनी हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखी जाएंगी, और इस दौर में इस मोहब्बत के उन्वान को दोबारा जिसने ज़िंदा किया है वह आपके आशिक व सादिक हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम हैं। खुदा की मोहब्बत हमें अपने दिलों में पैदा करने के लिए किस तर्ज से आपने नसीहत फरमाई है, और इसी पर मैं अपनी गुज़ारिशात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारा बहिश्त हमारा खुदा है, हमारी आला लज़्ज़ात हमारे खुदा में हैं, क्योंकि हमने उसको देखा और हर एक खूबसूरती उसमें पाई। ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल खरीदने के लायक है अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। ऐ महरूमो इस चश्मे की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा, ये ज़िंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। जलसा सालाना स्विट्जरलैंड, जलसा सालाना स्विट्जरलैंड। नारे तकबीर।